yesterday. The structure of the ear, is that clear to everyone? Any doubt? ठीक है? Today we will discuss the working of the human ear. Right? Structure clear है बेटे? सबको? Right, I am again just no need to draw it again, just have a look. Like this we draw. Is it clear? Right? What is this? Ear pinna. Right? What is this? Ear canal. And this is eardrum, and other name of eardrum is tympanic membrane. Ear has three, ठीक है, outer ear, middle ear, and ठीक है, I am just writing the abbreviations because we already did. ठीक है, so don't write these things in exam. ठीक है जी. Then this is eardrum or the tympanic membrane. Ear has three bones. ठीक है, hammer. These are having another name also. Just try to find out what other names are called. I am just giving you the clue. This is stirrup है, that is called stapes also. So in the same way, hammer का भी other name है and anvil भी. ठीक है, anvil, stirrup. Okay, these are semicircular canals. This is cochlea. This is auditory nerves, and this is eustachian tube. This was the diagram, right? Now write down the working. Okay, first of all क्या होगा working में? पिन्ना जो है that collects, जो पिन्ना है that collects the write down. Pinna collects sound waves from pinna collects sound waves from, कहाँ से लेगा? पिन्ना collect कहाँ से करेगा? From the surrounding किसको देगा? सराउंडिंग से लेके साउंड को कहाँ पे collects the waves from the surrounding and then to the eardrum through ear canal, and then pass to the eardrum through ear canal. Right? अब हम इसको कैसे लिखेंगे so that you easily learn, right? Write down in this way. मतलब हम all the steps we will write in this form, flow chart की form में we will explain so that it will easy for learning also. तो मैंने क्या लिखा? थ्रू ईयर कैनाल लिखा है, जाने के लिए ईयर कैनाल. ठीक है, लिखो. उसके बाद when it strikes to the eardrum, तो eardrum क्या होगा?
Write down. This make eardrum to vibrate. This makes eardrum to vibrate. अब जब ये वाइब्रेट हुआ तब क्या करेगा? साउंड कैसे भी हो जाएगी? वाइब्रेट हुआ ईयर ड्रम, देन बोन्स के पास जाएगा. राइट डाउन द 3 बोन्स. फिर ऐसे एरो. द 3 bones received या receives. 3 bones receives the vibrations. The 3 bones receives the vibrations from eardrum. The 3 bones receives the vibration from the eardrum. ठीक है ना? यहाँ से तीनों bones को vibration कहाँ से आए? eardrum से. The 3 bones receives the vibration from the eardrum and amplify them. Amplify, you can say the signals, waves. Amplify them. Amplify them. ठीक है. फिर एरो नीचे करो. वहां से कहा गई? राइट डाउन कोक्लिया. राइट डाउन कोक्लिया रिसीव्स द. यहां से कोक्लिया में आ जाएंगी. कोक्लिया रिसीव्स द एम्प्लीफाइड वाइब्रेशंस. कोक्लिया receives the amplified vibrations. Cochlea receives the amplified vibrations. Amplified cochlea receives the amplified vibrations from 3 bones. From 3 bones. अब ना कोक्लिया जो होता है ना, हेयर, अगर वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो वी विल सी यहाँ पे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. तो राइट डाउन हमने क्या लिखा है? कोक्लिया रिसीव्स द एम्प्लीफाइड वाइब्रेशन फ्रॉम द 3 बोन्स. आगे लिखिए सेंसिटिव हेयर प्रेजेंट ऑन कोक्लिया. Sensitive hair present in the cochlea. इसी के साथ ही sensitive hair present in the cochlea convert. Sensitive hair present in the cochlea convert into nerve impulse. क्योंकि हमारे ब्रेन को नर्व्स के साथ ही जाएगी इंफॉर्मेशन. तो ये जो एम्प्लीफाइड जो सिग्नल्स आए थे, जो वेव्स आई थी, तो जो स्मॉल हेयर प्रेजेंट है कोक्लिया में, व्हाट दे विल डू? दे कन्वर्ट इनटू द नर्व इंपल्स. फिर एरो नीचे. सेंसिटिव हेयर प्रेजेंट इन द कोक्लिया कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स. एरो. द नर्व इंपल्स. These nerve impulse carried to the brain. Impulse carried to the brain by auditory nerve. Through auditory nerve कह लो या by. These nerve impulse carried to the brain through auditory nerves. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? एरो डालिए नीचे. ब्रेन डीकोड. डिकोडिंग करते हो ना? कोडिंग डिकोडिंग. ब्रेन decodes. Brain decodes nerve impulse. Brain decodes nerve impulse into specific sound. Brain decodes nerve impulse into specific sound. Is it clear? Working is clear? Any doubt? So better to write down in a paragraph. Write down in this way. Teachers को भी immediately they can find out और easily learn हो जाता है. Easily you can understand कि after this what is happening. ठीक है? After that
The next topic is audible and inaudible sound. Next is audible and audible and inaudible sound. अब जो audible है that means कि जो हम सुन सकते हैं, है ना? So write down the definition of audible. The sound whose frequency, the sound whose frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz. मैं HZ की फुल फॉर्म लिख रही हूँ hertz. ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम पे है hertz. ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, right? The sound whose frequency lies between 20 hertz to 20,000 here that we can hear. That we can, yeah, we are able to hear. That we are able to hear. इनको हम क्या कहते हैं? Audible sounds. Clear है? ठीक है. अब इसमें एग्जाम बाद में करते. चलो नेक्स्ट लिखो. इनऑडिबल में लिखो. इनऑडिबल में लिखिए the sound whose frequency is the sound whose frequency is less than 20 hertz or more than 20,000 hertz. Okay, the sound frequency, okay, which lies, yeah, which is less than 20 hertz or more than 20,000 hertz, these are called the inaudible sound. ठीक है. अब एक बार नीचे फिर लिखो इसी को. ऐसे लिखो लेस देन, नीचे ना स्टार डाल के लिखो लेस देन 20 हर्ट्ज. इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. इंफ्रासोनिक साउंड. ठीक है जी. दीज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड. अब कौन कौन इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है? ठीक है. राइट डाउन एग्जांपल आल्सो. राइनोसिरोस, ये ना 5 हर्ट्ज से भी कम की सुन लेता. राइट. देन यू कैन राइट वेल्स, और यहाँ पे एलिफेंट्स. नॉर्मली हम बोलते हैं ना व्हेन वी यूज्ड टू टॉक लाइक इन पंजाबी और समथिंग, वी यूज्ड टू से कि जंगल में कुछ भी हो रहा हो तो हाथी बहुत जल्दी शोर मचाना शुरू कर देते हैं. तो बिकॉज दे केम टू नो, बिकॉज दे कैन हियर, उनको लेस देन 20 हर्ट्ज की साउंड भी है, दे कैन हियर दैट वन. सपोज अर्थक्वेक आना है, ठीक है, तो दे कैन हियर दैट साउंड. उनको पता लग जाता है जिसकी वजह से हलचल होती है. राइट. अर्थक्वेक मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं अर्थक्वेक में जैसे साउंड आती है तो दे कैन हियर. नहीं. नेक्स्ट लिखो मोर देन 20,000 हर्ट्ज. इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक. अल्ट्रासोनिक साउंड. ठीक है. मोर देन 20,000 हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड. मैं डायग्राम ही रेज कर देती हूँ. ये कर दूं ना, यहाँ लिख देते हैं. more than 20,000 hertz, this is called ultrasonic
sounds. इसमें लिखो एग्जाम्पल dolphins, bats, right? चमगादड़, bats, they can hear, right? ठीक है जी. इसमें एक और लिख लो आप, क्या कहते हैं उसको, डॉल्फिन, बैट. एक लिखो डॉग्स होते हैं ना, दे कैन लाइक, इन केस ऑफ द डॉग्स 40,000 हर्ट्ज. ठीक है, वो इतनी भी सुन लेते हैं. ठीक है, इसी के साथ लिख लो द पुलिस यूज दिस हाई फ्रीक्वेंसी, the police use high frequency whistles. Police use high frequency whistles which dogs can hear, but humans cannot. ठीक है, पुलिस जो है they use this high frequency, ठीक है, which dogs can hear but human cannot, and this is called the Galton's whistles. Might be it is not given, but I discussed, so I am just telling it to you. Okay, if it is not given in your NCERT, so you can leave this thing. Galton's. हाँ जी, we are not able to hear that. हाँ? नहीं सुनेगी हमारे, मतलब you can say the problem. Some important terms. जिसमें से सबसे पहले लिखो ऑसिलेटरी मोशन. Oscillatory, we already discussed the to and fro, है ना, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था. To and fro motion of an object, to and fro motion of an object, ठीक है, is called vibration, and this motion is called oscillatory motion. To and fro motion of an object, मतलब बॉब के साथ हमने करा था ना कि अगर हम एक मेटालिक बॉब को पेंडुलम, आगे पीछे जाना, this is called the oscillation. To and fro motion of an object, ठीक है, this is called vibration, and this motion is called oscillatory motion. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड राइट डाउन. सपोज यहाँ पे ये A है, राइट, दिस इज B, दिस इज C, है ना. When it will move from here to here, okay, that means AB movement, right, this to this, AC, है ना. So amplitude क्या है? The maximum displacement, write down, maximum displacement of the bob, maximum displacement of the bob maximum displacement of the bob from its mean position. Maximum displacement of the bob, mean position ये A हो गई ना. Maximum displacement of the bob from its mean position on either side. Either side means you can write down AB and AC. ठीक है ना.
the maximum displacement of the bob from its mean position, ठीक है, like this AB, either on side, मतलब किसी भी साइड पे AB भी हो सकता है and AC भी, ठीक है। थर्ड लिखिए टाइम पीरियड। Third is time period. The number of complete oscillations. The number of complete oscillations. The number of complete oscillations made by. The number of complete oscillations made by a pendulum. Number of oscillations, complete oscillations made by a pendulum in 1 second. नहीं, आप इसको टाइम पीरियड लिख रहे थे ना, सॉरी, इसमें लिखो क्या बोला मैंने, आप इसको सॉरी इसको या टर्म ऊपर चेंज कर दो, इसको फ्रीक्वेंसी लिखो, मैंने फ्रीक्वेंसी की बोल दी, टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख लो, टाइम पीरियड की जगह प्लीज फ्रीक्वेंसी कर लो। द नंबर ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय अ पेंडुलम इन 1 सेकेंड, पहले फ्रीक्वेंसी की लिख लो, और लिखो, और करो, एक सिंपल लाइन भी लिखवा देती हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की लिखवा दी हूँ मैंने पहले, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, वो हमने करा था ना डिस्कस, फ्रीक्वेंसी की बोली है मैंने, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, राइट। अब टाइम पीरियड की लिख लो, सॉरी वो बाय मिस्टेक कर, लिखो टाइम पीरियड, the time taken by the bob, time taken by the bob, time taken by the bob to complete one oscillation, time period is time taken by the bob to complete one oscillation, time taken by the bob to complete one oscillation, ठीक है, that is called time period. Is it clear बेटे? आगे लिखिए, क्लियर है चारों? नेक्स्ट लिखिए लाउडनेस, लाउडनेस, लिखो loudness of a sound depends on its amplitude. Loudness of sound depends on its amplitude. लाइन लिख के नीचे ले लिख लो, loudness depends upon its amplitude, फिर नीचे ये लिख लो कि loudness is directly proportional to the amplitude. अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड क्या था इधर ऑन दिस साइड, अगर ये बढ़ रहा है तो लाउडनेस उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है जी, ठीक है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ये लिख लो, चलते जाओगे टर्म्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर ये इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो वो भी, वाइस वर्सा, इफ वन इंक्रीज अनदर विल इंक्रीज, वन डिक्रीज अनदर विल, एक दूसरे के साथ चलते, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, इसमें डी स्मॉल बी कैपिटल होता है, यूनिट्स इसके ऐसे लिखते हैं, डेसिबल,
ठीक है, जैसे हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है, हम जैसे ब्रीथ करते हैं, है ना, वो 10 डेसिबल होती है। ठीक है, अगर धीरे धीरे विस्पर करें, सॉफ्ट विस्पर करें हम, तो वो 30 डेसिबल होती है। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो 60 डेसिबल तक हमारी आवाज होती है, जो लाउडनेस है। ठीक है, जो ट्रैफिक होता है दैट इज हैविंग द 70 डेसिबल। उसी तरह से जो फैक्ट्रीज है वहां का जो नॉइस होता है वो 80 डेसिबल, जैसे जैसे लाउडनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, अबव दिस हमारे को पेनफुल होती है, हम इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। 80 से ज्यादा, 80 90 जब हम पहुंचते पहुंचते दैट इज अ पेनफुल, तो वो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटे? ठीक है, आगे लिखो पिच, या एक मिनट इसके साथ ही लिखो पोज। मैंने ड्रम लिया, ठीक है, स्ट्राइक का ड्रम सॉफ्टली, धीरे से ड्रम को बजाया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, धीरे बजाया तो व्हाट विल हैपन, एम्पलीट्यूड कैसा होगा, स्मॉल, है ना। लिखो एक लाइन लिखो, strike the drum softly। जब हमने ड्रम को सॉफ्टली स्ट्राइक करा तो क्या होगा, स्मॉलर एम्पलीट्यूड। राइट, देन एम्पलीट्यूड स्मॉलर है तो साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट, है ना, देन सॉफ्ट साउंड। और अगर हमने हार्डर स्ट्राइक करा, लार्जर, अब इसके लिए जो हमारे पास वेव्स बनती है ना, वेव्स मतलब जब हम इसको शो करते हैं लाइक दिस। अब जब अगर हार्डर होगा, आपने बहुत तेज ड्रम को बीट करा तो हार्ड साउंड होगी, यानी कि लाउड साउंड होगी, तो ये इस तरह से। ठीक है, वी विल डू डिस्कस दिस अगेन।